Hello everyone, I'm Marima Khanam and welcome back to Balajee online classes. Today I'm here to teach you lesson number 3, that is Idgah. Idgah is a place where Muslims go on the day of Eid to offer their Eid prayers. ईदगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम्स ईद के दिन वहाँ अपनी ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं. So let's read this story, which is a story of Hamid and his grandmother. A full 30 days after Ramzan comes Eid. It was a glorious morning and the village was agog with excitement. People were getting ready to go to the Idgah, but the happiest of all was Hamid. A little boy of 4 or 5, an orphan. He lived with his grandmother Amina and slept in her protective arms, thinking that his father would come back with bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts. Hope is a wonderful thing, and then child's hope. तो जो ये स्टोरी है वो हामिद की है, जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा करता था क्योंकि वो एक ऑर्फन था. उसके मदर और फादर की डेथ हो चुकी थी और वो उसकी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो उसको अक्सर ये बताया करती थी कि जो तुम्हारे पापा हैं वो गॉड के पास गए हैं और जब वो वहाँ से आएंगे वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे. और उसकी मदर भी गॉड के पास गई हैं ताकि वो वहाँ से हामिद के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ला सकें. और हामिद ये सोचकर रोज़ बहुत खुश होता था और होप करता था कि उसके पेरेंट्स जल्दी से वापस आ जाएं. Poor Amina sat in her hovel and cried. It was Eid and she didn't have a grain of food in the house. She was filled with gloom and despair when Hamid entered the hut and said, "You must worry, Amma. You mustn't worry, Amma. I'll be back before anyone else." तो ईद का दिन था और जो ग्रैंडमदर थी आमिना जिनका नाम था, वो अपनी हॉवल में बैठी थी, अपनी झोपड़ी में बैठी थी और बहुत रो रही थी क्योंकि उनके घर में एक दाना भी नहीं था कि वो उस ईद के त्यौहार के दिन बना सकें और खुशियाँ मना सकें. सो शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दैट. तो हामिद वहाँ आता है और वो कहता है कि अम्मा आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा. सारे लोग आ भी नहीं पाएंगे और उनसे पहले मैं यहाँ आ जाऊँगा. Amina felt a tightening around her heart. Other children were all going with their fathers, but Hamid had no one to accompany him. He had no shoes and had to walk 3 miles. He would get blisters. There were only 8 paisa in the house, 3 in Hamid's pocket and 5 in Amina's pouch. तो आमिना के पास सिर्फ 8 पैसे थे, जिसमें से कुछ उन्होंने अपने लिए रख लिए थे 5 पैसे और 3 पैसा उन्होंने हामिद को दिया था क्योंकि हामिद ईदगाह जा रहा था. The villagers started for the fair. Hamid was walking along with the other children. Why were they walking so slowly? Whatever caught their eyes, they would stand and gape at it in wonder. तो जब वो वहाँ जाते हैं फेयर में तो सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के फेयर को एंजॉय करते हुए जाते हैं. तो हामिद सोचता है ये क्यों बार बार रुक रहे हैं, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे. वो हर स्टॉल पे रुक जाते थे और चीज़ों को एंजॉय करते थे, देखते थे कि क्या क्या हर स्टॉल पे बिक रहा है. हामिद फेल्ट he had wings on his feet. Suddenly they could see the Idgah. There were rows upon rows of worshippers as far as eyes could see, spilling well beyond the mosque courtyard. Here neither wealth nor status matters because in the eyes of Islam all men are equal. तो थोड़ी दूर पर ईदगाह दिखती है और वहाँ पर रोज़ अपॉन रोज़ हैं, बहुत सारी रोज़ हैं और लोग खड़े हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए. और यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है क्योंकि in the eyes of God all people are equal. The prayers were over. Men embraced each other. Then they descended on the sweet shops, a merry-go-round, wooden horses, camels, and suspended on rods and the toy vendors. Hamid's friends Mahmood, Mohsin, Noore, and Sami rode on the camels and horses. तो जब प्रेयर्स हो जाती हैं तो वो फेयर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग कौन कौन से स्टॉल्स पे जाते हैं. स्वीट स्टॉल पे जाते हैं, अमेरी गो राउंड पे जाते हैं, वुडन हॉर्सेस कैमल्स पे जाते हैं जो दे वर सस्पेंडेड विद
द रॉड्स एंड टॉय वेंडर्स के पास जाते हैं। हामिद के जो फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर 4 फ्रेंड्स का नाम मेंशन है, महमूद, मोहसिन, नूरे एंड समी। दे ऑल rode on the camels and horses, but Hamid did not spend any of his money on these types of rides. Hamid stood at some distance. He could not waste 1/3 of his treasure on an ordinary ride. Then the children bought clay toys and he looked at them with longing, hoping and he could carry them for a little while. After the toys, it was sweets. Hamid remained aloof. The boys bought sweets and teased Hamid. तो जब नेक्स्ट जगह वो लोग जाते हैं, जो कि जहाँ पर क्ले टॉयज मिल रहे होते हैं, सारे बच्चे क्ले टॉयज बाय करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हामिद उन्हें देखता रहता है और सोचता है कि काश ये टॉयज मैं सिर्फ एक बार अपने हाथ में लेके देख सकूं। फिर वो स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं और उसके फ्रेंड्स स्वीट्स खाते हैं और उसे टीज करते हैं। The hardware shop that lay ahead had no attraction for the boys and they walked on except Hamid. A pair of tongs caught his attention. His grandmother did not have one. Each time she made chapati, she burnt her fingers. If he bought these tongs, she would be happy. It would be a useful item in the house. He asked the shopkeeper, "How much is this for?" तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हार्डवेयर की शॉप आती है, जहाँ पर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता है और बच्चे वहाँ पर रुकते भी नहीं हैं। बट हामिद वहाँ पर रुक जाता है और उसे एक पेयर ऑफ टोंग दिखता है। वो सोचता है क्यों ना मैं ये अपनी ग्रैंडमदर के लिए ले लूँ। वो सोचता है क्योंकि उसकी जो ग्रैंडमदर थी अक्सर अपनी उंगलियाँ जला लिया करती थी जब वो रोटियाँ बनाती थी। तो वो सोचता है कि अगर मैं ये ले लूँगा तो ग्रैंडमदर खुश हो जाएंगी और अब से उनकी उंगलियाँ भी नहीं जलेंगी। और वो शॉपकीपर से पूछता है कि इसका क्या कॉस्ट है। He looked at the boy. This is of no use to you. तो शॉपकीपर कहता है उसको देखते हुए कि ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। Is it for sale? Of course. It's for 6 paise. Hamid's heart sank. He picked up his courage and said firmly, "Will you take 3?" and walked on, afraid that the shopkeeper would scream at him. But the man called him back and gave him the tongs. Hamid put it on his shoulder like a gun and filled with pride joined his friends. तो हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा थे। जैसे कि आप जानते हैं हामिद के घर में सिर्फ 8 टोटल पैसे थे, जो 5 पैसे ग्रैंडमदर ने रख लिए थे और 3 पैसे हामिद को दिए थे। तो हामिद के पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं। शॉपकीपर कहता है कि ये जो टोंग है ये 6 पैसा का है। तो हामिद एकदम से बोलता है, क्या आप मुझे 3 पैसा का दोगे इसे? और वो भाग जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इतने कम मैंने इसके पैसे लगाए हैं, कहीं शॉपकीपर उसके ऊपर चिल्लाने न लगे। बट शॉपकीपर उसे बुलाता है और कहता है कि ये लो एंड यू कैन गिव मी 3 पैसे। हामिद वो लेके बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने शोल्डर पे ऐसे रखता है कि जैसे उसने गन रखी हो, और वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेता है। Mohsin said, "Why have you bought a pair of tongs? What will you do with it?" Mahmoud said, "You have made the tongs into a toy." Hamid replied, "Why not? If I hit your toy with it, then will all break." तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको टीज करते हैं कि ये तुमने क्यों खरीदा है, क्या ये कोई खिलौना है और इसको तुम ऐसे लेके प्राउडली घूम रहे हो जैसे कि ये बहुत अच्छा कोई टॉय हो। Mohsin thought of a new way to taunt Hamid. "Your tongs will burn its nose in the fire every day." तो जो मोहसिन उसका फ्रेंड था वो उसको टीज करता है, कहता है कि जो तुम्हारा टोंग तुमने लिया है ये रोज अपनी नोज जलाएगा आग में। हामिद had a quick reply, "Only the brave dare jump into the fire." तो हामिद रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है, सिर्फ ब्रेव ही फायर में अपने आप को जला सकते हैं, तो मेरा जो टोंग है, मेरा जो टॉय है वो बहुत ही ब्रेव है। The 3 boys were utterly squashed. Hamid had won the field. None of the boys could dispute the fact. Hamid's buy was the best. तो हामिद कहता है कि मेरा जो परचेज जो मैंने किया है, जो मैंने अपने लिए टॉय खरीदा है वो बेस्ट है, और उसने अपने सारे दोस्तों को सबका मुंह बंद करा देता है अपने आंसर से। The respect that a victory commanded from the vanquished was paid to Hamid. The others had spent
up to 16 paise and bought nothing worthwhile. Peace talks began. Each of the boys began to strike a deal with Hamid. Mohsin said, "Let me see your tongs. You can carry my toy." Hamid had no objection to accept such terms. The tongs gradually passed from one hand to another while Hamid was allowed to handle the toys. हामिद के फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही यूजलेस थिंग्स खरीदते हैं और यूजलेसली अपने मनी जो हैं वो वेस्ट करते हैं. They did not buy anything worthwhile even after spending 16 paise. Hamid's tone was conciliatory. "I was only teasing you. There's no comparison between these plain steel tongs and your beautiful toys." But the boys were not convinced. "Nobody is going to bless us for bringing these toys," cried Mohsin. और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते ही रहते हैं, उसे टीज करते ही रहते हैं कि तुम्हें कोई प्रेज नहीं करेगा कि तुमने बहुत अच्छा कोई टॉय खरीदा है. अब तुम घर भी जाओगे तो तुम्हारे घर में सब स्कोल्ड करेंगे कि तुम ये क्या लेके आए हो. Hamid had to accept that none of the boys' mother would be as glad to see the tong as his grandmother would be to see the tongs. तो हामिद सोचता है कि कोई बात नहीं, जो मैं ये लेके जा रहा हूँ मेरी ग्रैंडमदर इसे देख के बहुत खुश होगी. Mahmoud was hungry and took out some bananas his father had given him. He shared them only with Hamid, while others stared with their mouth watering. What was the glory of the tongs? जो हामिद का फ्रेंड था महमूद, उसे भूख लगती है और वो अपने पॉकेट से बनाना निकालता है जो कि उसके फादर ने दिया था. वो सिर्फ हामिद से शेयर करता है और वो एंजॉय करते हैं. और वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों परचेज किया है, तुम्हें इसमें क्या मिल रहा है, तुम्हें इसमें क्या खुशी दिख रही है. But by 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home. On hearing Hamid's voice, Amina rushed forward and picked up when she spotted the tongs in his hand. She was taken aback. "Where did you get it from?" तो सब बच्चे वापस आते हैं. आमिना हामिद की वॉइस सुनते ही वो बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि हामिद के हैंड में अ पेयर ऑफ टोंग्स है. तो वो देख के सरप्राइज हो जाती हैं कि तुमने ये क्यों परचेज किया, तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुम कहाँ गए थे. "I bought it for you." "For how much?" "For 3 paise." Amina grew angry. What a stupid boy. It's almost noon and he had not eaten anything in the entire fair. Couldn't you find anything better than these tongs? What will you do with it? तो वो कहती है कि दोपहर हो गई है और इतनी देर में तुमने कुछ भी नहीं खाया है और तुम ये लेके आए हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तुम ये क्यों लेके आए हो. Hamid said meekly, "You burn your fingers when you make chapati. That's why I bought it." वो कहता है धीरे से कि तुम रोज चपाती बनाती थी और अपनी उंगलियां जला लेती थी, इसीलिए मैं ये खरीद के लेके आया हूँ. The old woman's temper changed into love. What concern for others, what a big heart. The poor boy, how he must have suffered seeing others buying toys and sweets. Even at the fair, he thought of only his grandmother. She broke down. The old woman Amina became Amina the little girl. Large tears fell from her eyes while Hamid comforted her. Hamid the child was playing the role of Hamid the old man. तो हामिद की बात सुनते ही आमिना बहुत ही फूट फूट के रोने लगती हैं कि इतना छोटा बच्चा वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोच रहा था, बल्कि जो और बच्चे थे उसके फ्रेंड्स थे वो सब एंजॉय कर रहे थे, परचेज कर रहे थे डिफरेंट थिंग्स, टॉयज़, और इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी अपने लिए नहीं लिया, सिर्फ उसने अ पेयर ऑफ टोंग्स ही लिया जो कि उसकी ग्रैंडमदर के लिए थे. ये देख के आमिना बहुत ही टूट जाती है और रोने लगती है. वो एक छोटी बच्ची की तरह रोती है और हामिद यहाँ पर एक ओल्ड मैन की तरह बिहेव करता है, अपनी ग्रैंडमदर को कंफर्ट करता है. आमिना besieged Allah's blessing for her grandchild. How would Hamid understand what was going on inside her? आमिना अपने ग्रैंड सन को ब्लेसिंग्स देती है और गॉड से प्रे करती है कि अल्लाह उसके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें, वो हमेशा खुश रहे. और उसे नहीं पता था
कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हामिद को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ग्रैंडमदर के दिल में क्या चल रहा है, वो कितना परेशान है। So I hope you understood the lesson very nicely. Please read the lesson and start doing your exercises after downloading it from School Mitra. Please take care of yourself and study very nicely and wait for my next video. Bye bye.